To Ram Ahuja, 3 different aspects are there, should be abolished, Varna system should be reintroduced, or with the change it should continue. 3 बात कह रहे थे वो, right? So at the end of the day, when you will write the conclusion part, then you can write the statement of M.N. Srinivas. That caste in itself is not a problem. Problem is with the caste system. So caste system should be abolished, not the, because caste जो है, it is actually an identification of Hindu society. To गुरिया ने भी यही कहा था, श्रीनिवास भी यही कह रहा है. हमने पढ़ा. योगेंद्र सिंह क्या कहता है? What Yogendra Singh says about the future of caste? क्या बोलता है? To Yogendra Singh, it is very unpredictable, right? Caste, it is very much impossible to predict the future of caste system, right? Because the changes or modification or adaptation caste system is doing in the present society. How caste system is going to change? What are the factors? अगर हम बात करें क्या factors है बताओ? Industrialization, modern education and urbanization and बात वो तो mobilization में बात है. caste system में और क्या system है बताओ? अभी if I talk about the present system, as we discussed about the current situation of caste system in India, we discussed about the restrictions, right? कुछ vanished हो गए, कुछ loosen हो गए हैं, कुछ equality. तो इसके पीछे reason क्या है? Industrialization है, urbanization है, modern education है, then expansion of communication, right? New mode of communication. वो हो गए. और मॉडर्न लाइफस्टाइल हुआ. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे बढ़ा? हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल, राइट? न्यू हम लोग क्या बोलते हैं उसको? न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, पैरामीटर्स हैज बीन चेंज्ड. इन सब का एक सिस्टम बन के आता है, राइट? सो यस्टरडे एट लास्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डोमिनेंट कास्ट, राइट? और कास्ट विच इज डोमिनेंट. 2 वर्ड है ना, डोमिनेंट कास्ट और कास्ट विच इज डोमिनेंट. एंड दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ M.N. Srinivas ऑन रामपुरा. डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा. क्या है उनका ऐसे का नाम? दैट इज right? Dominant caste of Rampura. In this way, what Srinivas wanted to explain? What he wanted to explain? Interaction and change, right? In the caste system, interaction between the caste and change in the caste system, right? So this was the center or focus of the study. Dominant caste by M.N. Srinivas sir. कहाँ पे कर रहे हैं वो? रामपुरा में, dominant caste में, right? Second, as we discussed that when he started to study and the caste of this one, and which caste was there? Okalinga. कौन सी बात कर रहे हैं? Okalinga community, right? Which challenged the supremacy of Lingayat Brahmins of that particular regions. Why they? Because due to the economic, right, and political supremacy. Okalinga community challenged the supremacy of Brahmanas. Which Brahmanas? Lingayat Brahmins of Karnataka in that particular area. Now, how a caste could be dominant? What are the features which makes a caste dominant in an area? Right? That we have discussed
that there are certain criteria on which a caste can be termed as dominant caste, and those are, the first was the caste should be have a proper control on land. Second, they should be great in numbers. And of course, we discuss about the local or regional social hierarchy. Then political control. Then we discuss about the proper educated, right? And people should be in administration, right? So these were the criteria what Srinivas determined for a caste to be the dominant caste, right? Land ownership should be there, social hierarchy, numbers, political, education, administration. Now, initially, what Srinivas told that social hierarchy is a prior character to be a caste, to be dominant in an area. In this way, it can be said that Dalit cannot be a dominant caste in an area. But when Srinivas observed Dalit caste as dominant caste in particular areas, he changed his parameters. Now he stayed less on social hierarchy, more on ownerships, number, political, education and administration. As we have discussed also in this way, the K.L. Sharma study on Kanpur villages, what he observed there, that Brahmins social hierarchy very supreme, political numbers very good, but could not convert into a dominant caste due to economic poverty. Second, the case study of Weiser in Karimpur village in UP, where he observed Brahmanical supremacy. Third, Osco Lewis, Rampura, where Jat dominancy, and then Okalinga community by M.N. Srinivas, and then study of Jatav community in Agra, and Jatavs were Dalit. So Dalit community in Agra became a dominant caste, right? Jatav community, a Dalit community, right? A dominancy. So then he changed his definition and told that any caste can be a dominant caste in that particular area which has certain parameters. And how Dalit became the dominant caste in certain regions? What were things? क्या बताओ? पहली बात, as we discussed, legislation, legal, constitutional, economical and political control. Now even some higher caste are trying to get a status of lower caste also, due to the benefit of reservation, right? They are, right, putting themselves, or they are claiming that they are not very much dominant or prominent. They are rather backward class, right? Economic backward, economy weaker section, EWS, is based on economic poverty. The word economic poverty, clear? So even now upper caste want the status of lower caste. At one time economic poverty was a characteristic feature of lower caste, but due to the benefit of the government, now upper caste are also claiming the status of lower caste. That you can write in EWS. ये आप एक एग्जाम्पल साइट कर सकते हो, राइट? सो दलित में हमने 3 चीज लिखी, फैली कॉन्शियसनेस, राइट? दलित कॉन्शियसनेस। दूसरी बात हमने क्या कहा? रिजर्वेशन बेनिफिट। तीसरा लेजिस्लेचर बेनिफिट। चौथा पॉलिटिकल कंट्रोल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ड्यू टू द बेनिफिट्स ऑफ लोअर कास्ट, अपर कास्ट आर आल्सो क्लेमिंग द स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट। ये चेंज इन दी, किसकी बात कर रहा था? ये 2 चीज की, इंटरेक्शन एंड चेंज
डोमिनेंट कास्ट स्टडी में क्या दो बात किया था, इंटरैक्शन एंड, तो दिस इज कॉल्ड द चेंज in the status of caste in caste system, in the caste system. Now upper class are claiming the status of lower class, a new feature added into the concept of caste system in India. Clear? ये बात आपको लिखना है, why dominant caste concept is important in caste system, because it discuss about the interaction and change in the caste scenario, right, in a framework of caste system. कैसे? पहले क्या कहते थे, that dominant caste can be the caste which are hierarchy at the upper status in the hierarchy, right, having social hierarchy वही हो सकती है. But now with the study of these dominant caste in region to region, what was found that not only the social hierarchy class but the lower class also emerged as the dominant caste in certain regions, right? फिर हम region देखे, and due to this some certain castes are claiming status of lower caste also. तो ये चेंज आया सिनारियो में. हमने संस्कृताइजेशन में क्या बोला था, राइट, लोअर कास्ट अडॉप्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपर कास्ट. ये तो उल्टा हो रहा है ना, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ संस्कृताइजेशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, तो ये चेंज हमको नजर आया. देन हमने पढ़ा था कि इन वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट इन डोमिनेंट कास्ट, एट हायर, मिडिल एंड लोअर कास्ट. हायर में किसके नाम लिखे थे हमने, किसकी बात की थी हमने, वी डिस्कस अबाउट दी नमूद्रीपाद, डाइटिंग के साथ कौन लिखता है, इतनी डाइटिंग वाली डाइटिंग कौन लिखता है भाई, नमूद्री. उसके बाद हमने बात की थी आयंगर्स, चट्टोपाध्याय, सरयू पारिन, राइट, ये सारे ब्राह्मण्स है, हमारे पास में. नंबूद्रीज है केरला में, आयंगर्स तमिलनाडु में, चट्टोपाध्याय वेस्ट बंगाल में, सरयू पारिन अवध द यूपी रीजन. तो दीज आर दी हायर कास्ट. मिडिल क्लास में कौन आ गया हमारे पास में, रेड्डी है, और कौन है, जाट है, और मिहार है, राइट. लोअर कास्ट में हमने किसका नाम लिया था, महार, मेघ, बलई, राइट. सरयूपन कहां से हो गए, अवधा बंगाल, आयंगर्स तमिलनाडु, नमूद्री केरला, रेड्डी कर्नाटका, जाट नॉर्थ, भूमिहार बिहार, महार महाराष्ट्र, मेघ गुजरात, बलई यूपी. राइट. सो दीज आर द कास्ट जो हमने बात की है. सो एनी कास्ट भी, सेकंड ये तो है कास्ट, डिफरेंट कास्ट, हायर मिडिल लोअर, हमने एक सिस्टम दिया है. एनी कास्ट भी कुड बी ए डोमिनेंट कास्ट. नाउ सेकंड वी डिस्कस दैट डोमिनेंट कास्ट इज अ regional phenomena, right? So what happens,
local, regional, national, right? So this dominant caste system, it decreases from local to national, right? Dominant caste phenomena decreases from local to national. Clear? मैं यही कह रहा हूं ना, दिस फिनोमिना डिक्रीजेज फ्रॉम लोकल टू नेशनल. एक छोटी सी बात बताता हूं. इफ यू सी द कैबिनेट ऑफ एनडीए फर्स्ट, टॉप पे 24% ब्राह्मण्स थे. जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो टॉप मिनिस्ट्रीज थी उसमें मेजोरिटी ब्राह्मण्स की थी. तुम कैसे कैसे डोमिनेंट कास्ट नहीं हो? मैं ये नहीं कह रहा, इट्स नॉट, इट्स जस्ट एन स्टडी, इट्स जस्ट अ स्टडी, इट्स जस्ट अ स्टडी. ना की स्टडी है ये कि इन द एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट टाइम मेजॉरिटी ऑफ मिनिस्टर्स वर फ्रॉम ब्राह्मणी कास्ट. ये भी तो एक डोमिनेंसी का है ना. बट उन्होंने क्या कहा था, डोमिनेंसी डिक्रीजेज फ्रॉम लोकल टू नेशनल. क्लियर? ये एक बड़ी बात उन्होंने बताई. दूसरा, राइट, उल्टा कर लेना, मैंने तो डिक्रीजेस बताया है. मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूं, इंक्रीजिंग थोड़ी बता रहा हूं. मैं डिक्रीज कर रहा हूं, लोकल टू नेशनल डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? एक सिंपल बात ये आ रहा है. So dominancy and second thing, we cannot predict the future of any caste as a dominant caste. A dominant caste of yesterday may or may not be of today, or may not be of tomorrow, whether it will be dominant or not. A day when Brahmins were dominant on the basis of hierarchy, today may be other caste due to the economic, political, administrative, education and numbers. Now they became the dominant one. So the future of dominant caste cannot be predicted or unpredicted. The today's dominant caste may or may not be in. ये और टॉपिक, ये और पॉइंट आपको लिखना है, राइट? The future of dominant caste cannot be predicted, right? The dominant caste of presence may or may not be the dominant, right, in future. So dominant caste system is a system of present, not of future. Right? So this is about the dominant caste system. So we discuss what is dominant caste. A caste can be dominant in a particular area when it fulfill these certain conditions. First, Srinivas emphasized on the social hierarchy, but later and according to that, any Dalit caste cannot be a, but with the certain study of certain areas, he changed the mind. Now these criteria important, not social hierarchy, not more important, right? Okalinga, Lingayats, then case studies. After case studies, what we found that any caste be dominant, but the dominant caste system is a regional concept. It decreases to the national one, cannot be predicted. This is about the dominant caste of M.N. Srinivas. ऐसे क्या नाम है? डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा. ये था डोमिनेंट कास्ट.
अब लिखो जजमानी, जजमानी सिस्टम। आए आजा। जजमानी सिस्टम, इट्स नॉट जज, इट्स यज। यज और यजमाना, राइट? टू वर्ड्स आर वेरी पॉपुलर, यजमाना एंड कमीना, राइट? कमीन एंड यजमाना, yajmana, right? And comines are the service providers, right? Service providers, these were called as the kamina, and yajmana who require their services, right? So jajmani system is actually a interfamilial relation in and an intercaste system, right? So jajmani system is a relation. Which relation? Jajmani system represents an between jajmani system represents and an intercaste economic relation where upper castes are service recipient whereas lower caste are service providers, right? So this the system of service providers and service recipient as yajman and kameen, right? So the system represents yajmana and kameen relation, राइट? तो यजमाना कौन हो गया? सर्विस रेसिपिएंट, और कमीन कौन हो गया? सर्विस प्रोवाइडर। इफ आई गो विद दिस वन, अब लिखो टू वाइजर जजमानी सिस्टम, जजमानी लिख लो, बहुत है। जजमानी इज एन इंटर फैमिलियल रिलेशन in an intercaste system, right? So actually it's a relation between families, right? A family of service provider and family of service recipient, right? It's a relation between the family of service provider and service recipient. Because it happens in a caste system, so it is called interfamilial relation in an intercaste system. System is caste, relation is familial, right? Because family is an institution, caste is a system. So it is an interfamilial relation in an intercaste system. This is Weiser, right? Weiser told about this one. To Gould,
Good. It is a relation between superordinate and subordinate in terms of services. Right? To Srinivas, it is a form of exploitation of lower caste by upper caste. Right? So now Srinivas, Bailey, according to them, Jajmani system is a system of exploitation. Exploitation of lower caste by upper caste in terms of services. So if we go with things, हम क्या कह सकते हैं? If we talk about this, what is the relation? It's a relation in multi-dimension. We have a Jajman, right? And we have a Kameen, right? The service recipient and service providers, two things are there, right? Now, from Jajman to Kameen, what Kameen provide to Jajman? Services. And what Jajman provide to Kameen? Food, right? And products. Clear? ये सिस्टम है. So to Ram Ahuja, Jajmani system is a traditional reciprocal relation between Jajman and Kameen. Or upper caste and lower caste, or upper caste and lower caste in a caste system. Sociologist. Ahuja, Yogendra, Bete, Srinivas, सब के सब. Ahuja, Yogendra, Andre Bete, राइट? मदान, कपाड़िया, शाह, ये सब के सब जो है इधर आएंगे सोशोलॉजिस्ट में. ये सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ऐसी दुबे बीच में खड़ा हुआ है, दोनों तरफ टांग डाले वैसे. डीएन मजूमदार, राइट? विद्यार्थी जी को 99% हम क्या मानते हैं? ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट? अमेरिकन स्टाइल में. दुर्खाइम सोशोलॉजिस्ट है. बिल्कुल. घुरिये दोनों नेगेटिव डार्क कास्ट के बारे में, बट दोनों कहते थे इंडिस्पेंसिबल है, पर दोनों नेगेटिव है. घुरिये कहता था इट शुड बी अबोलिश्ड, हमने बात की थी. घुरिये क्या बोलता है? कास्ट सिस्टम इज एन इविल, इट शुड बी अबोलिश्ड. श्रीनिवास क्या बोलता है? कास्ट सिस्टम इज इविल बट नॉट दी कास्ट. तो आंसर लिखो, दोनों को ध्यान रखना, राइट? जब ओरिजिन की बात करो ना, ओरिजिन की, व्हेन यू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ कास्ट, सबसे पहले बोलना मल्टीपल फैक्टर्स. There is not a single factor which is responsible for the origin of caste. और किसने दिया था मल्टीपल फैक्टर का थ्योरी?
घर जाके कोक पीना। कोक क्या जंग निकालता है, कभी देखा होगा आपने, उससे क्या रस्टिंग निकल जाती है, तो कुछ दिमाग की रस्टिंग निकले। अरे कल तो हमने बात की थी, आज भी नहीं हुआ है। किसने कहा था भाई साहब? अरे एस.सी. रॉय साहब कहाँ चले गए हैं? कहीं चले गए हैं क्या? वहीं बैठे हुए ना। एस.सी. रॉय सर ने कहा था मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। सो जजमानी का ये। नाउ द सेकेंड थिंग इज क्या है, उसने क्या बोला टू राम आहूजा। नाउ ये राम आहूजा ने कहा, राम आहूजा कहता है कि अ जजमान हैज सो मेनी कमीन्स, राइट, एंड अ कमीन हैज सो मेनी जजमान्स। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस, द जजमान एंड कमीन, राइट, क्या करूंगा, ये जजमान है ना, हो सकता है ना। Complete multiple relation in a system. A judgment contains so many comines as service provider. A commune contains so many judgment to provide the services. Right? ऐसा नहीं कि एक का एक होता, सब जगह होता है भाई। अगर गांव में एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मान लो बार्बर है, राइट, तो क्या वो एक के पास ही जाएगा? नहीं, 2 4 5 गांव ले रखे हैं उसने, उसके परिवार वालों ने। एक गांव में एक के पास जाए ठाकुर साहब है, दूसरे गांव के भी ठाकुर साहब होंगे। अगर वहां अगर वो सिस्टम नहीं होता है तो उसका परिवार जाएगा। सो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये डायग्राम याद रखना, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो वहां पे एंथ्रो में काम आएंगे। जजमान कमीन, जजमान जजमान जजमान, कमीन कमीन कमीन, राइट। वहां पूरा लिखना है, ठीक है। दोनों एक तरफ नहीं होता बेटा, ये इक्विलिब्रियम है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। हाँ हाँ, एक ऐसे होगा। मैंने इक्विलिब्रियम इसलिए बताया तुमको क्योंकि हमने भी क्या बात की थी, रेसिप्रोकल रिलेशंस। वर्ड याद आया? रेसिप्रोसिटी आया था ना, एक्सचेंज। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन किसने बोला है? राम आहूजा ने। क्या बोलता है? रेसिप्रोकल रिलेशंस। इट मींस गिव एंड टेक बेस्ड ऑन एक्सचेंज। और एक्सचेंज हमने बताया था ना, सर्विस दे रहा है और बदले में फूड एंड प्रोडक्ट्स ले रहा है। So actually Jajmani system represents the reciprocity in Indian society. Jajmani system is actually a model of reciprocity in traditional Indian society, as we have discussed in the tribal society reciprocity, right? कौन चर्चा करता है reciprocity की? कहाँ याद आता है, हम तो डूबे हैं। रेसिप्रोसिटी है, लेविस्टोस बात करता है, बिल्कुल करता है जनरल रेसिप्रोसिटी की। और कौन करता है? बहुत बढ़िया, सालिंस करता है, डाल्टन करता है, करता है ना, मार्शल करता है, बिल्कुल करता है। इन सब के नाम कहां पढ़े थे जब आप बात कर रहे थे सब्सटेंसिव रेसिप्रोसिटी में? किसने दिया था? ट्रेविस्टोस बात करता है, उसका सालिंस तो 3 प्रकार की बताता है। डाल्टन भी तो बोलता है, डाल्टन ने नीचे लिखा है, डाल्टन मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द एक्सचेंज सिस्टम। अडर लो दोबारा घूम, यहां लाइनें चलती है भाई, लाइन जब बोलते हैं तब, राइट। तो दिस इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इन अ कास्ट सिस्टम और इंडियन सोसाइटी। अब जजमानी में क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, राइट। किसने दिया था? डी.एन. मजूमदार सर ने। डी.एन. मजूमदार सर ने कहां पे काम किया है? यही, हाँ यूपी में तो हुआ, वो तो मैं भी जान रहा हूं, सारे यूपी को घेर लो। भाई साहब लखनऊ में काम किया इन्होंने, राइट। कानपुर में किसने किया है?
कानपुर में किसने काम किया है? अभी 2 मिनट पहले चर्चा हुई थी। तो श्रीनिवास जी यहां पे तो रामपुर में कौन है? अच्छा, दुबे जी रामपुर में है, तो फिर समीरपेट में कौन है? अरे केएल शर्मा साहब कानपुर विलेज में काम कर रहा है, बता रहा है इकोनॉमिक पॉवर्टी ऑन ब्राह्मण्स। अभी 2 मिनट पहले केस स्टडी में डिस्कस किया था इकोनॉमिक पॉवर्टी ऑफ ब्राह्मण्स। अरे केस स्टडी में बार बार इसमें भी 6-7 केस स्टडी लिखनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना, याद रखना उसको, वही काम आएगी, वही मार्क्स देगी तुमको। एक हम बात करते हैं वाइजर, दूसरा करें गुड़, तीसरे की श्रीनिवास, राइट। हम ये बात करेंगे, क्वेश्चन आता है दैट जजमानी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और जजमानी सिस्टम इज एक्सप्लोरेटरी इन नेचर। तब किसका नाम लेंगे? श्रीनिवास जी का, बड़े प्यार से कहा है। मजूमदार सर इन्होंने कहा है, दुबे जी उन्होंने भी कहा है, पर राम आहूजा इसके उलट चल रहा है। मजूमदार ने कहा था बॉन्डेड लेबर को पैदा करता है ये, राइट। पीढ़ियां के पीढ़ियां जुड़ी है काम से, जो दे रहे हैं वही ले रहे हैं, कोई चेंज उसमें नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं कि डीएन मजूमदार, राइट, कैसे बता रहे हैं कि इन इज स्टडी इन 1958 डीएन मजूमदार गेव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ठाकुर फैमिली ऑफ लखनऊ, राइट। एक बर्थडे का ओकेजन बता रहा है कि बर्थडे हो रहा है, राइट। वो देखा होगा आपने, हो जाता है एक बेचारा केक वाला केक दुकान पर, केक दीजिए हमको, क्या लिखना है? हैप्पी एनिवर्सरी का, बर्थडे बना लो, कहे कि एनिवर्सरी की स्पेलिंग नहीं आती है। बर्थडे काहे मनाए भाई, स्पेलिंग नहीं आती ना एनिवर्सरी की, इसलिए। सो अब बर्थडे इन किसमें हो रहा है? ठाकुर फैमिली, राइट। और विलेज कहां का है? इट्स ए विलेज ऑफ लखनऊ। हियर ठाकुर फैमिली इज ए जजमान, राइट। अब एक इमेजिन करो दैट यू आर लिविंग इन अ विलेज, अ ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी विलेज वेयर बर्थडे इज सेलिब्रेटिंग, राइट। इस बर्थडे पे अब वो लोग किन किन को बुलाएंगे सेवा के लिए? पूरे गांव को आपने इनवाइट किया है खाना खाने के लिए, राइट। बर्थडे का ओकेजन है, तो कौन कौन आएंगे बताइए? एक गोल्ड स्मिथ आएगा, सोनार जी आएंगे सोने के लिए, सोना दान करेंगे, बर्थडे है, राइट। पहली बात ये हो गया। हो सकता है कि परदादी जी को सोने की सीढ़ी चढ़ाए, तो तुलादान होता है, तो दादी जी को चढ़ा रहे हैं, राइट। दूसरा कौन आएगा भाई? कुक, ऑफ कोर्स, एक कुक आए हैं। और कौन आएंगे साहब बताइए? एक पासी आएगा सफाई करने के लिए, राइट। और कौन आएगा बताइए? एक बर्तन बनाने वाला आएगा, पिक्चर या पॉटर, मिट्टी के बर्तन लेके आएगा ना। और कौन आएगा? गांव को सोचो, गांव को सोचो, कौन आएगा? एक बार्बर आएगा। और कौन आएगा? हाँ ऑफ कोर्स आएंगे, ढोली मिरासिया जो है, जो मिरासी है, बिल्कुल आते हैं। उस समय का गांव है, कोई डीजे थोड़ी लगा है? मोटी होगी रे मनीषा। वो थोड़ी लगा है आपका। हाँ, आपके पास एक पंडित आएगा, ऑफ कोर्स। आपके पास एक कौन आ रहा है? एक पुरोहित आ रहा है जजमान के रूप में, बहुत बढ़िया। सोचो, डिस्पोजर आ गया ना, फांसी बिठा दी तुमने। हाँ फांसी आ गई, कहार आएगा, बैलगाड़ी बुलो काट लेके आएगा, कोई आदमी आएगा क्या? जैसे पुराने जमाने में गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह लेके आते थे, वो भी कोई आएगा? कौन आएगा बताओ? वो इनमें, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हम बात करें 1958 की, ठीक है ना। और पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था कब शुरू हुई थी?
1959 नागौर में पहली बार पंचायती राज की बात हुई थी। उसके बाद 1991 आपका संशोधन हुआ था, जब इसकी नींव पड़ी थी 72-73 में, 1990 72-73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और 1959 में पहली बार नागौर में नींव डाली गई थी। हम बात करें 1958 से 62 की, कहां की बात करें? यूपी की। पंचायती राज को छोड़ दो। अब आप देखो सर्विस प्रोवाइडर किसके यहाँ पे कौन कौन आते हैं भाई। सिंपल बात में एक पासी आएगा, एक मिरासी आएगा, एक बार्बर आएगा, एक गोल्ड स्मिथ वाला आएगा, एक पॉटर आएगा, राइट, एक गांव का जो है आयरन मेकर जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ है, वो आएगा, राइट। ये सब लोग आएंगे गांव में। किस फैमिली में आएंगे? ठाकुर फैमिली में, राइट। ठाकुर साहब को सब अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और बदले में क्या होगा? इनको दिया जाएगा, ये क्या लेते थे? ये लेते थे शेयर इन क्रॉप। क्या ले रहे हैं? शेयर इन क्रॉप। आज भी देखो, अगर गांव में फसल होती है तो एक हिस्सा आप निकाल के रख लो, जो जूते काटने वाले होते हैं, राइट, उनके पास जाता है। तो जूते काटने वाला भी आएगा, राइट, वो भी एक यहां पर आएगा, कॉबलर जो है वो। तो एक हिस्सा उनको, एक हिस्सा ये जो इनको, पासी को, गोल्ड मिरासी को, बार्बर को, इन सब को एक एक हिस्सा उसका जाता था फिक्स फॉर्म में। और साथ में खाना, जो बचा हुआ खाना होता था वो उनके लिए दे दिया जाता था, राइट। तो ये सब जो है ये बता रहा है यजमानी सिस्टम इन ए टिपिकल विलेज, राइट। नाउ थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहा है कि सर्विस, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग सर्विस, बट द रेट इज नॉट फिक्स्ड on the basis of quality and quantity of service. Rate was already fixed on the basis of sin crop जो चली आ रही है, राइट, जो प्रथा चली आ रही है वही उनको मिल रहा है, चाहे वो सर्विस ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, उसका कोई लेना नहीं है, राइट, उसका यहां पे कोई भी अकाउंट नहीं है। So why D.N. Majumdar told that these people are working as the bonded labor, क्योंकि इनके हिसाब से व्हाट सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग ऑन द बेसिस सर्विस, राइट, इनको इनका शेयरिंग नहीं मिल रहा है। शेयर इज ऑलरेडी फिक्स्ड। वो 20 किलो है तो है, 50 किलो है तो है, उसके बाद वो नहीं है। तो यही बात यहां पे थी। तो ये बता, ये बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। D.N. मजूमदार सर, राइट, ठाकुर फैमिली, जजमान, और ये सब कौन है? कमीन। एंड कमीन इज नाउ नॉट अ सॉबर वर्ड। आपको खुद पता है कमीन एक सॉबर वर्ड नहीं है, इसीलिए इसको बताया था ये एक्सप्लॉइटरी नेचर में है, क्योंकि वर्ड ही सॉबर नहीं है। Right? So it is an economic relation, but not based on equal value. Problem क्या रहा है कि not based on equal value or market value of service. Clear? It is traditionally set in terms of kind, not in terms of cash. In terms of kind, already fixed. So service is not evaluated on the basis of quantity or quality. It is already based, it is already, right, predicted on the basis of traditions, right, कि इतना देना है. So that is the traditional value, not the economic value. So this was what we say, it was a system, economic system, which was based on social custom, right?
So economy value was encased in terms of social relations. तो तेरी मर्जी है। मिरासी तन्ने गाने बजाने का गाना शौक है? हाँ, देखते हैं तेरा डीजे कितना बजता है, देखते हैं। बड़े जन्मदिन पर लाने तन्ने ढोल नगाड़े। सो जजमानी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम बता रहे थे कि इट वाज नॉट बेस्ड, एक्चुअली नॉट बेस्ड ऑन इकोनॉमी, राइट, एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल सिस्टम, right, where estimation was based on society, not on economic terms, and that was the main cause of changing dynamics of Jajmani system, because now these service providers demanded things in cash, not in sharing things. So monetization, so when monetization of service started, Jajmani system started declining. अब उनको क्यों कैश चाहिए भैया, क्यों आपकी फसल में चाहिए 50 किलो 90 किलो, वो कहेंगे जो हम दे रहे उसके बदले में कैश दो हमको, राइट, यहीं से सिस्टम चेंज हो गया जब आप कैश मांग रहे हो, राइट। सेकंड, जजमानी सिस्टम हैज बीन चेंज्ड, व्हाई सो? प्रोफेशनलिज्म हो गया जजमानी सिस्टम में, इन्होंने बाहर जाके दुकानें खोल ली, माइग्रेट हो गए, राइट, इन्होंने नए सिस्टम अपना लिए, घर में ही बाल काटे जा रहे हैं, राइट, आपने घर में ही ले आए हैं, क्लियर, तो सिस्टम कम हो गए, बाकी इनकी जगह प्रोफेशनल्स ने ले ली। आपके घर में बर्थडे है, मैरिज है, तो ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आएगी, वो पूरा सेट कर लेगी, सिस्टम हैज बीन चेंज्ड। सो दिस वाज अ सिस्टम, जो हमने कहा है जजमान है, कमीन है, सेवा है, सर्विसेज है, राइट। सो जजमानी सिस्टम इज ए सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल रामानुजा, एक्सप्लॉइटरी श्रीनिवास, राइट। अब थोड़ा केस स्टडी लिखो, केस स्टडीज, केस स्टडीज, डीएन मजूमदार, कहां पे? लखनऊ, लिखो, डीएन मजूमदार सर के सामने लिखो, लखनऊ। एग्जाम्पल हम दे चुके हैं ठाकुर फैमिली का। सेकंड, वाइजर, वाइजर कहां पे? हाँ, करीमपुर, यूपी, करीमपुर लिखो, करीमपुर, राइट, वाइजर करीमपुर पे काम किया, राइट। दो स्टडी है, ध्यान रखना वाइजर की, कौन कौन सी है? डोमिनेंट कास्ट भी है और जजमानी भी है, दोनों की बात कर रहा है वाइजर। तीसरा लिखो, कैथलीन गफ, कहां पे किया है? तंजौर, लिखो तंजौर एंड यूपी, तंजौर एंड यूपी। चौथा लिखो, पॉल कोलिंडा, खलीपुर, यूपी। एससी दुबे, ये सब तुम कर चुके हो साले, उल्टा पटक के मार दूंगा मैं तुमको। कोलिंडा पहली बार सुना होगा, बाकी दिखाइए, है कौन? हाँ जी, अब काम कहां किया भी लिख दो। नहीं, ये नहीं है, एससी दुबे यूपी में नहीं है। एससी दुबे बताओ कहां है? कहां है प्रभु? यह है समीर पेट, समीर पेट, आंध्रा, हैदराबाद, जहां पे, राइट, आंध्र में एससी दुबे सर हो गए। और कौन बच गया भाई हमारे चंगुल से? और कौन बच गया? श्रीनिवास जी बच गए,
पर ध्यान रखना श्रीनिवास जी को इसमें नाम लिखना नहीं है। श्रीनिवास जी ने जज्बानी सिस्टम पे काम किया है ना? क्या बोला? किया है साहब, अभी मैंने लिखा ही है डेफिनेटली। एक्सप्लॉइटेड नेचर कौन बता रहा है? तो लिखो ना, कहां पे काम किया श्रीनिवास जी ने? रामपुरा, 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 राइट? रामपुरा में हो गया। तो अपने पास में 6 केस स्टडी तुम्हारे पास आ गई ना? डोमिनेंट कास्ट में कौन कौन सी थी? एक नाम और लिख लो प्यारा सा, ऑस्कर लेविस। ये भी है, कहां पे है? रामपुरा, यूपी। लखनऊ गढ़ था सोशल एंथ्रोपोलॉजी का और सोशोलॉजी का, पर इसके चारों तरफ सारे दिन हुए हैं, राइट? ये करीमपुर, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, खलीपुरा, या फिर अपना रामपुरा, ये सब वही अध्ययन हुए। लखनऊ, कानपुर, ये सारे दिन वही हुए। तो ये 7 स्टडी आपके पास में है, किसकी? जजमानी सिस्टम की, राइट? ये किसके आगे अपने? सो व्हाट इज जजमानी सिस्टम हमने डिफाइन किया, वाइजर ने डिफाइन किया है, श्रीनिवास ने डिफाइन किया, गोल्ड ने डिफाइन किया। जजमानी सिस्टम क्या होता है? रिलेशन रेसिप्रोकल, रामानुजा बोलता है। उसके बाद में डीएन मजूमदार सर इसको कहां पे बता रहे हैं? इन लखनऊ सिस्टम बता रहे हैं। अब नेचर ऑफ जजमानी सिस्टम, नेचर एक्सप्लॉइटरी नेचर, कौन बोला एक्सप्लॉइटरी नेचर के बारे में? पहले लिखो श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास। अलग से लिखो नीचे, बराबर में मत लिखो, नीचे ए पॉइंट लगा के लिखो, एमएन श्रीनिवास, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट। पहली बात लिख दी। दूसरे को डीएन मजूमदार, राइट? बॉन्डेड लेबर, डैश करके लिखो इसके आगे, बॉन्डेड लेबर, इमरजेंस ऑफ बॉन्डेड लेबर, राइट? तीसरा नाम आपने लिखा था किसका? वाइजर, ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ क्लास, ऑपरेशन ऑफ क्लास, राइट? ये 4 आपने लिख दिए हैं। 3 श्रीनिवास आगे, मजूमदार जी आगे, और एससी दुबे सर आगे। एससी दुबे लिख लो, ये भी इसी के अंदर आते हैं भाई साहब, राइट? एक्सप्लॉइटरी नेचर में 4। अब ये कह रहे हैं कि दीज ऑल आर ऑफ एक्सप्लॉइटरी नेचर, बट उसके बाद कौन बोलते हैं? रामानुजा, जो कहते हैं नो, इट इज नॉट अ exploitory nature, it is actually a reciprocal relationship between different caste in a society, right? ये बात ये कहते हैं। तो ये नेचर आता है इसका, तो कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, वो कहते हैं नहीं सत्य है। फाइनली ये हमारे पास में आता है, तो रामानुजा लिख देना, रामानुजा रेसिप्रोकल, ये इसका एंड होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का एंड होगा रामानुजा रेसिप्रोकल। क्लियर? अब चेंज इन जजमानी सिस्टम और डिक्लाइन ऑफ जजमानी सिस्टम, चेंज और डिक्लाइन ऑफ जजमानी सिस्टम। पहला लिखो मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, इसमें क्या लिखेंगे? राइट? विद द कोर्स ऑफ टाइम कमीन
or service provider castes demanded for monetization of services. Right? Not sharing of crops. क्लियर? तो पहला डिक्लाइन का ये हो गया. सेकंड, change in agricultural activities. According to Tilde, TILDE, according to Tilde, agriculture activities not confined to upper caste landlords right, and expanded to lower castes, which changed the scenario of Jajmani system. Right? Third, impact of urbanization. क्या हुआ? Service provided migrated towards urban areas for better opportunities and professionalization of services and for better opportunities for service providers or commune migrated towards urban areas for better opportunities and professionalization of services begin in rural area also. Right? अब देखो खास बात एग्रीकल्चर में क्या होता है, दो चीजें हो रही है. फर्स्ट क्या हुआ कि फर्स्ट लैंडलॉर्ड्स हैड द होल्ड ऑन लैंड और दे कंटेन द लैंड कंट्रोल, so agriculture was in the hand of those people, and other were the laborers. But with the course time after independent, things have been changed completely. Land Sealing Act, Bhudan movement and all these things, those who were cultivators became the owners of the land. Due to this agriculture system has been changed. Second, upper caste move themselves to other professions, right, as administration or industries, trades, and migrated towards the cities. So this system declined from both side, right, both side. So S.C. Dubey ने यही कहा था कि actually the system of Jajmani is actually a binary system, right? To S.C. Dubey, Jajmani system is a dual system of exploitation. ये अलग से लिख लेना, ठीक है? जो मैंने पीछे नहीं लिखाया था ना, उसको यहां पे डाल लेना, इसको एक उसमें ब्रैकेट में बंद कर लेना. जब एक्सप्लॉइटेशन की बात है ना, तो ये कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है. एक तो एक्सप्लॉइटेशन किस चीज का हुआ कि आपका सर्विस का पूरा आपको मिला नहीं, दूसरा आप वहीं पे सर्विस करने के लिए कंपेल्ड हो, तो डुअल सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है. तो फिर बाद में ये हो, तो ये तीन चीजें. अब देखो, इफ वी टॉक अबाउट द डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन दोनों तरफ से लिखना. पहले प्रॉब्लम किन के साथ में थी? प्रॉब्लम थी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, नॉट सर्विस रेसिपिएंट्स.
they were always in advantage, right? Because they were getting services in nominal price for a year, for generation to generation, right? Now things have been changed. First change kya aaya? Monetization of services. With the changing of time, with the changing of urbanization, industrialization, modern education, everything you can write, right? Due to the change, with the course of time, they demanded monetization of services in terms of cash, not in terms of kind. Second, जो change आया, agriculture activities expanded towards the service providers, right? Now no more they are dependent for the crops on the upper caste. Third, professionalization of services became professional. Fourth, changing of occupation. एक point और डाल लो, changing of occupation. Changing of occupation by service communes. ये देखो बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूं. जरूरत नहीं है, हाँ ये भी लिख सकते हो. चेंज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लिखा है ना, वहां पे एक पॉइंट डाल देना, राइट? द लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर शिफ्टेड टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी लेड एग्रीकल्चर, राइट? तो इसकी वजह से इनकी जरूरत नहीं है. फिर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सर्विसेज में क्या हुआ कि प्रोफेशनल लोगों को बुलाया जाने लग पड़ा. ये भी प्रोफेशनल हो गए, सर्विसेज के लिए प्रोफेशनल लोग आ गए. गांव में भी आज तुम देखो तो अब डीजे आ रहे हैं, खाने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, सर्विसेज को बाहर से हायर किया जा रहा है, लोकली हायर कर ही नहीं रहे. लोकली हायर कब करते? सवा मणि करनी होती है तब लोकली लोग हायर होते हैं कि उनको चूरमा बनाना आता है कि एक पीपे में कैसे 200 आदमी को खिलाया जाए. वो बाहर के लोग नहीं कर पातेंगे और उसको 3 घंटे में कंज्यूम करना होता है. चौथे घंटे तो क्रिकेट खेल लो. वो तो लड्डू बनाते हैं ना, चौथे घंटे में जो क्रिकेट खेल लो उसे इतना बढ़िया बनता, कहता 3 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेना. गए वो बीकानेर में क्या, एक बंदा गया बाजार में, फड़ बाजार में बूंदी लेने के लिए. तो वहां पहुंचा, उसने कहा भाई साहब 1 किलो बूंदी देना. कि ठीक है, अपना कपड़ा आगे करो, अपना शर्ट. वो कहे भाई साहब घी से बिक जाएगा. कि घी से बिक जाएगा तो हम किस लिए बैठे हैं? डाल के घी लग जाए तो हम बैठे हैं, पानी में निकाल देते हैं. हाँ कला है. इतना सा आपके ऊपर पूरा नीचे वो बॉइल्ड वाटर है, उबला पानी है, उसके अंदर इतना सा लेयर घी का आएगा, इतना सा डाला, फटाक से डाल दिया, जरा निकाल दिया. जैसे ही आपने पानी डाला हुआ उबला हुआ, उस पानी के ऊपर आपने एक सिंपल सी पतली सी लेयर बना दी घी की और फटाफट उसको डाला अंदर. ठीक है, उसने जितना किया निकाल लिया बाहर. तो 100 ग्राम में 5 किलो निकाल लो. कैसे कपड़े चिकने होंगे भाई? तो तुमको 50 रुपए किलो भुजिया चाहिए, 70 रुपए किलो बूंदी चाहिए, तो वही मिलेगा ना. कि साहब हार्ट की प्रॉब्लम है, कि घी होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मन से खा. सो थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. अब जजमानी सिस्टम के देखो 2 क्वेश्चन जो ज्यादातर आता है वो ये आता है कि डू यू थिंक दैट जजमानी सिस्टम वाज एक्सप्लॉइटरी इन नेचर? एक बड़ा क्वेश्चन आता है. तो हम स्टार्ट होते हैं किनसे? जिन्होंने कहा है, राइट? जैसे वाइजर ने कहा है, श्रीनिवास ने कहा है, या फिर मंजूमदार कह रहे हैं, दुबे सर कह रहे हैं. पहले हम बताएंगे कैसे एक्सप्लॉइटरी नेचर है. कैसे बताएंगे? हम पॉइंट्स रखेंगे. पॉइंट्स क्या रखेंगे? फर्स्ट नॉट बेस्ड ऑन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज, ईयर एंड शेयरिंग इन कॉर्पोरेशन, नॉट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, राइट? कमीन्स वर कमीन्स ओनली, राइट? लोअर कास्ट सिस्टम. तो ये नेचर था. अब इसको करेंगे राम आहूजा के सिस्टम में. टू राम आहूजा इट वॉज अ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन कमीन एंड यजमान. तो फिर हम बताएंगे कैसे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं. ये क्या दे रहा है? सर्विस. वो क्या दे रहा है? फूड एंड प्रोडक्ट. वो दिया. फिर एक कमीन के कई जजमान और एक जजमान के कई कमीन. एंड हेरिडेटरी नेचर. इफ ए पर्सन डाइड, वो अपने यजमान किसी और को दे जाता था, राइट? तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा चलती रहती थी. ये एंड दिस वॉज एक्चुअली द बेसिस ऑफ इंडियन विलेज सिस्टम, right? Basis of Indian village system and an interaction between caste, upper caste and lower caste.
हम कहते हैं ना कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब जैसे हम ठाकुर साहब के यहाँ वाशरमैन भी आएगा, भाई जन्मदिन का होगा तो सब लोग आएंगे, जितने भी सेवादार है एक गांव में, सब जातियां आती है। सो इट मींस ऑल कास्ट्स आर देयर एट एनी ओकेजन, वेदर इज डेथ, बर्थ, एनिवर्सरी, जो भी सिस्टम होता था। सो इट वाज एक्चुअली एन इंटर रिलेशन बिटवीन कास्ट इन अ कास्ट सिस्टम। अब नेचर क्या है वो अलग है, बट ये है क्या, स्ट्रक्चरली देखें तो एक कास्ट सिस्टम है, फंक्शनली देखें तो क्या है, फंक्शनली क्या है, रिलेशन बिटवीन कास्ट है, और नेचर वाइज देखें तो एक्सप्लॉइटरी और रेसिप्रोकल। तो हमें इन तीनों पार्ट में डिवाइड करना है। हाउ इंडियन सोसाइटी मेक इंटरकास्ट रिलेशन इन अ इंडियन सोसाइटल सिस्टम, तो हम लिखेंगे थ्रू जजमानी, राइट, थ्रू जजमानी सिस्टम। हमने लिख दिया इसको, कैसे हमने बता दिया। अब उसकी नेचर क्या थी, एक्सप्लॉइटरी, रेसिप्रोकल, वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। ये और उसके बाद में अलग अलग विचार और केस स्टडीज हमने डाल दी, तो यहां हमारा खत्म हो गया जजमानी सिस्टम। डोमिनेंट में कुछ पॉइंट लिखो, अभी डोमिनेंट कास्ट में कुछ पॉइंट लिखो। डोमिनेंट कास्ट, पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट, डोमिनेंट कास्ट works as role model of sensitization for other castes. राइट, जैसे जैसे करीमपुर में ब्राह्मण्स, रामपुर में जाट, पंजाब में जाट, डोमिनेंट कास्ट वर्क एज ए रोल मॉडल ऑफ सेंसिटाइजेशन फॉर अदर कास्ट। सेकंड it determines the cultural values in a specific region, which has to obey by other caste also. Right, ये हो गया। And for the norms, for the setting of norms, caste councils governed by dominant caste. And disobeying norms liable to punishment for all other caste also. क्लियर, जैसे खाप पंचायत हरियाणा की है, तब उस रीजन में कोई भी कास्ट वाला रह रहा है, अगर उसके यहां पर कुछ भी हुआ तो ऑनर किलिंग का जो सिस्टम है वो सिर्फ उन लोगों पे नहीं, खाप पंचायत हर एक पे लागू होगा। राइट, जैसे हमने कहा था, जो वो जो लोग कहते हैं कि जी एक होगा तो सब पे असर पड़ेगा, तो वहां ये फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ प्रॉब्लम हुई है, नहीं, खाप पंचायत फॉर एवरीबडी। सो दीज caste councils are controlled or governed by these dominant caste, and or disobeying will liable to the punishment for each and every caste residing in that particular region. Third, political control.
राइट। ये काम जो है, ये डोमिनेंट कास्ट जो है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन ए गिवन रीजन। क्या प्रॉपर्टीज है? पहला रोल मॉडल फॉर संस्कृताइजेशन, दूसरा कल्चरल ट्रेड सेट करती है, तीसरा नॉर्म सेट करती है, चौथा पॉलिटिकल कंट्रोलिंग का जो सिस्टम है वो इन लोगों के द्वारा होता है इन ए गिवन एरिया। सो पॉलिटिकल डिसीजंस, राइट, इलेक्शंस, वोट कास्टिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, वो कौन डिसाइड करता है? डोमिनेंट कास्ट कंसेंट करती है। कौन खड़ा होगा, किसको वोट जाएगा, किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी आएगी, सब कुछ ये तय करते हैं। सो ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय डोमिनेंट कास्ट ओनली। तो ये है डोमिनेंट कास्ट। जब हम लिखेंगे ना फाइनली द प्रॉपर्टीज, तो डोमिनेंट कास्ट में पहले आएगा व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट, हु लेड द कंसेप्ट, देन डिटर्मिनेटर्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट किस पे होनी चाहिए, देन अपर कास्ट वर्सेज दलित्स का, फिर केस स्टडीज, राइट, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डोमिनेंट कास्ट, राइट। फाइनली ये हो गया डोमिनेंट कास्ट का। और अगर जजमानी सिस्टम का है तो हम लिखेंगे जजमानी सिस्टम क्या है? इट इज एक्चुअली अ इंटररिलेशन बिटवीन कास्ट इन ए कास्ट सिस्टम। अब वाइजर क्या बोलता है, गूल्ड क्या बोलता है, उसके बाद में श्रीनिवास और राम आहूजा क्या बोलते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल लेड बाय डी.एन. मजूमदार, ठाकुर फैमिली, वो लिखा। उसके बाद में क्या सिनारियो इनके बीच में कैसे दिया जाता है, लेन देन कैसे होता है, एक जजमान कई कमीन एक जजमान, दोनों सिस्टम, एक विलेज का एक जजमान हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, बट डोमिनेंट फैमिली ज्यादातर जजमान होती है, जो उसका टाइम की डोमिनेंट है वो जजमान होगी, कमीन सेवादार होंगे। अब चेंजिंग सिनारियो, क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर एक्सप्लॉयटेटरी और नॉट, और यहां पे हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ये 4 पॉइंट किसमें? डोमिनेंट में, और 4 पॉइंट जजमानी। ये 8 पॉइंट ध्यान रखना व्हेन यू आर देयर, क्योंकि वहां लिखा हुआ सिर्फ आएगा जजमानी सिस्टम। 10 में भी आपको पॉइंट मेन में लिखना पड़ेंगे। इफ इट इज अबाउट 10 नंबर, हम क्या करेंगे? फर्स्ट, व्हाट इज जजमानी सिस्टम, राइट। इफ इट इज ऑफ 10 मार्क्स, एनी 2 डेफिनेशन। इसमें अच्छा है आप किसको दोगे? एक दोगे वाइजर को और एक दोगे गूल्ड को। ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पक्का देना है, वाइजर एंड गूल्ड। डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद में आप क्या कहोगे? इट इज इकोनॉमिक रिलेशन लिख दिया आपने, फिर आपने दे दिया किसको? मजूमदार, डी.एन. मजूमदार सर का ठाकुर फैमिली वाला, वो दे दिया। उसके बाद में आपने इसको दे दिया दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया। उसके बाद में चेंजिंग डायनेमिक्स, छोटे छोटे 4 पॉइंट्स, मोनेटाइजेशन, चेंजिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, राइट। उसके बाद में प्रोफेशनल सर्विसेज, 3 आपने सर्विसेज उसकी दे दी। उसके बाद में दे दिया नेचर, राइट, एक्सप्लॉयटरी, रेसिप्रोकल। उसके बाद फाइनली केस स्टडीज। एंड thus it can be said that Jajmani system actually represents the relation in caste system of traditional Indian society. ये तुम्हारा हो गया जजमानी सिस्टम। जजमानी इन टर्म्स ऑफ दिस, पहले व्हाट इज जजमानी, हाउ इट वर्क्स किसने दिया? मजूमदार ने। व्हाट इज जजमानी किसने दिया? वाइजर एंड गूल्ड। हाउ इट वर्क्स? बाय मजूमदार। नेचर, उसके बाद में डायनेमिज्म, एंड फाइनली इट कैन बी सेड। दिस इज ऑल अबाउट जजमानी सिस्टम। इफ द क्वेश्चन इज अबाउट डोमिनेंट कास्ट, तो पहले क्या लिखेंगे? What is dominant caste? Who led the concept? Right? This one calculated. Then initial determinators 1 2 3 4 5 है भाई एम एन श्रीनिवास, जो श्रीनिवास सर ने दिए हैं। इनिशियली उसने क्या माना कि सोशल हायरार्की इज द प्राइम कैरेक्टर, बट उसके बाद उसने कहा दलित का भी हो रहा है, राइट, उसको भी माना। दलित के होने की पीछे की क्या क्या रीजंस थे वो आपने दिए। उसके बाद आपने क्या दिया इसके अंदर? केस स्टडीज, के.एल. शर्मा, वाइजर, ऑस्कर लेविस, एम.एन. श्रीनिवास, इनका दिया आपने। और उसके बाद क्या लिखा आपने इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ डोमिनेंट कास्ट। ये आपको देना है इसमें। किसमें आएगा ये? डोमिनेंट कास्ट सिस्टम में। अब लिखो कास्ट मोबिलिटी।
Next topic is caste mobility. और अगर सिस्टम क्वेश्चन कास्ट सिस्टम पर आए तो क्या दोगे? If it is question about the caste system, so we discussed. First we started with the origin, features, approaches, and then राइट और एक के बीच में एक दे देना राइट। ये 5 टॉपिक याद रखो। ओरिजिन ऑफ कास्ट, कास्टिटी फीचर्स ऑफ कास्ट, अप्रोचेज टू द कास्ट, देन प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम। 2 लोगों ने कहा था, फिर योगेंद्र सिंह ने 3 तरीके बताए थे ना 3, कि या तो एंड कर दो, या वर्णाश्रम ले आओ, या फिर कंटिन्यू टू करो। एंड कर दो कौन कहते थे? गूल्ड, राइट, सॉरी गुरिये कहता था एंड कर दो। वर्णाश्रम का कौन कर रहा है? गांधी जी कर रहे हैं, वर्णाश्रम सिस्टम ले आओ, राइट। और चेंज की बात कौन कर रहा है? श्रीनिवास कर रहा है, राइट। श्रीनिवास जी कह रहे हैं चेंज हो रहा है। और हमने कहा था 2 पार्ट के देखने का, छिनबिन हो गई, खत्म हो गई, हो गया पूरा। एक ने कहा नहीं, कंटिन्यूटी। छिनबिन की बात कौन कर रहा है? वेबर कर रहा है, मार्क्स कर रहा है, काली प्रसाद कर रहा है, मजूमदार कर रहे हैं, श्रीनिवास कर रहे हैं ना। और कंटिन्यूटी कौन कर रहा है? घुरिये कर रहा है, आंध्रे बेते कर रहा है, योगेंद्र सिंह कर रहा है, कपाड़िया कर रहा है, उधर कर रहे हैं, मदान कर रहे हैं। ये आपको लिखना है कास्ट सिस्टम में। तो कास्ट में ओरिजिन आगे, उसके फीचर्स में क्या क्या लिखोगे? जो हमने दिया, कौन कौन से कहा था हमने बेली की बात की है, हमने किसकी बात की है? हमने मैकावर की बात करी, हमने ग्रीन की बात की, रिजले की बात की है। सबसे ज्यादा फोकस यू नीड टू डू ऑन घुरिये। किस पे करना है? घुरिये। उसने 6 दिए थे, वो जो 6 दिए घुरिये ने, वही सारा खेल है। जिसमें क्या कहता है वो? हायरार्की, स्ट्रैटिफिकेशन, 2, तीसरा सेगमेंटल, हायरार्की, स्ट्रैटिफिकेशन, चौथा ऑक्यूपेशन, 5वां सिविल एंड डिसेबिलिटी राइट्स, और 6th मैरिज। ये 6 जो दिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 इसके ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास कम वर्ड हो तो सिर्फ गुरिये को उठा लेना, थोड़े से ज्यादा लगे 20 मार्क्स का है तो फिर आने देना। चाहे कैथरीन गफ ने कहा हो, क्या कहा हो गफ ने? रैंक बर्थ स्टेटस विद एंडोगेमी, कैथरीन गफ बोल रही है। योगेंद्र सिंह जी क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक, वो डाल देते। श्रीनिवास जी स्ट्रक्चरल, बुगिल स्ट्रक्चरल, ये पूरा डाल देना। तो ये 10 डेफिनेशन एक साथ जाएगी ना, काम पूरा हो गया, राइट। और ओरिजिन में कौन कौन सी आ गई? ब्राह्मणिकल, पहली कौन सी है? माइथोलॉजिकल, ट्रेडिशनल, दूसरी ब्राह्मणिकल, तीसरा माना, चौथा ऑक्यूपेशनल, उसके बाद में केलकर, सेनाट, मल्टीपल फैक्टर, राइट। तो ये तैयार रखना, क्लियर है। ट्रेडिशनल ध्यान रखना। कास्ट सिस्टम में क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। हमारे पास इतनी डेफिनेशंस है, 3 भी डाल दोगे, घुरिये को छोड़ना मत, घुरिये को छोड़ना मत। बाकी तुम्हें 1 या 2 भी है चलेगा। घुरिये आ गया, योगेंद्र सिंह आ गया, और तीसरा कौन आ गया? कैथरीन गफ आ गई, तब भी हमारा काम हो गया। घुरिये, सिंह और गफ, अगर 3 लोग भी हमें याद रह गए, हमारा काम हो गया। वैसे रिजले बहुत अच्छा है, रेशियल बेस्ड फैक्टर, राइट। रिजले रेशियल फैक्टर पे काम करता है, उसका भी अच्छा है। So this was about the caste system, future of caste, then dominant caste and जजमानी system. अब बात करो caste mobility. Why caste mobility is quite important? Why? According to Western thinkers and scholars,
The Indian caste system was a closed system which lacked the mobility. No mobility at all, completely fixed, stratified, right? But with the course of time, right, it showed the mobility in different ways, right? As we discuss this, the dominant caste concept, Jajmani concept, they all about the mobility and change. And now other we shall discuss that how mobility happened in the caste system. Mobility means changing of status of caste. Changing of status of caste, mainly the lower one, right? So a mobility was there. A mobility was there always. Mobility was there, na? Thana, if we talk about the from the ancient time, mobilization was there when the foreign tribes or foreign dynasties became the integral part of Indian society. Shak Murund, Kushans, right? Parthians, Indo-Greeks, Pallava, all these become the part of the this one, the Kshatriyas. Manu ji को क्या बोलता है? Second Kshatriya, right? So mobilization was always in Indian society or Indian caste system, right? If we talk about the Varna Sankara, mixing of caste, if we talk about the entry of new dynasties into the caste system, it always happened. So mobility was always there, right? But this mobility was not observed by, rather they observed on the structural aspect of caste system, not the functional mobility. And interaction between caste was always in the Indian society, where lower caste worked as the service providers, the service recipients. Different caste dominated at different areas, which were, वो क्या थी? The determinant of cultural traits थी ना. जहां जाट समुदाय तो वहां जाट ट्रेड्स बड़ा है ब्राह्मण ट्रेड से, राइट? वी डिस्कस ओकालिंगम ऑन लिंगायस, बात कर रहे हैं. नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा में जाट समुदाय है, उनकी कल्चर ब्राह्मणी कल्चर पे भारी है, राइट? संस्कृताइजेशन, वहां पे संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसंस्कृताइजेशन, मतलब जाट के जैसे जीना, थोड़ा हरियाणा का, छोरा जाट का, सिस्टम पे सिस्टम बिठावे छोरा जाट का. इफ यू सी द डोमिनेंसी, आपको सिर्फ सीधा पता लग जाएगा. हाँ, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, एंड दैट इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन कल्चर, ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ द कल्चर ऑल्सो. आप पहनावा देख लो, आप पहनावा देखो, वहां का कोई भी बंदा होगा उसके हाथ में कड़ा होगा ना, टाइट्स, वही सिंपल शूज पहने, ऐसे लगा, वैसे ही, मतलब पूरा जो उनका स्टाइल है ना, वो एक ही तरह को रिप्रेजेंटेशन होगा. Role models, as we discuss, that dominant caste works as a role model for Sanskritization. अब आप साउथ में चले जाइए, इफ यू टॉक अबाउट दी हैदराबादी कल्चर, तो वहां पर आपको मुस्लिम कल्चर का प्रभाव जबरदस्त दिखाई देगा. शादी ब्याह होंगी तो वो लोग क्या पहनेंगे? पठानी सूट. उनके लिए पठानी सूट शादी का कपड़ा है. वो बड़ी बड़ी सलवार यहां से चिपकी हुई, यहां से वो खुले वो शेरवानी कुर्ते, ये कास्ट. लखनऊ में जाइए तो वह लखनऊ स्टाइल है, वहां पे हर शादी में कबाब बनेंगे, चाहे वो हरे भरे कबाब वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेज के हो, राइट? टुंडी कबाब लाइक इन नॉन वेज बिकेम हरे भरे कबाब इन वेजिटेरियन, बट उनका फिक्स है, कबाब बनना है. तो ये सब इन्फ्लुएंस कहां से आते हैं? यहां से आते हैं. सो मोबिलिटी वॉज ऑलवेज देयर, राइट? कैसे हम लोगों ने अलग अलग कास्ट को इसमें लाए, तो हम कहां से बात शुरू करेंगे? एंशिएंट टाइम से. कहां से? कि व्हेन द फॉरेन इन्वेडर्स बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द कास्ट सिस्टम. क्षत्रियाज, देन राजपूत, ओरिजिन ऑफ राजपूत ऑफ ऑल द कास्ट, राइट? एंड उसके बाद बात करेंगे अलग अलग पार्ट. पहला, थ्रू वॉर्स और बैटल्स. राइट? श्रीनिवास जी क्या बोलते हैं? टू एम एन श्रीनिवास,
to M.N. Srinivas, there were certain castes which, due to the wars and battles, occupied a large area and became the ruler. Yes, and with the rulers, they demanded the high status in the caste system and became the Kshatriyas, as he talked about the Marathas. So Maratha mobilized due to the war or battle. Second, those castes which were in the services of ruler or aristocratic class, जैसे कायस्थ and patidar, right? Kaist and patidar were in the service of Gaikwads. Gaikwads, Marathas, कहाँ के Gaikwads? बड़ौदा, होलकर कहाँ के हैं? इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, पेशवा, पूना. So different of 5 Marathas, क्या बोलते हैं उसको, पदपादशाही जिस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग, हिंदू पदपादशाही सिस्टम. So Kayastha and Patidar were in the service of Baroda Gaikwad, and with the course of time, right, they became claimed for the Kshatriya clan and became Kshatriya. So पहला तो by war, second by the service of ruling class, कई कास्ट जो है वो बदल गई. उसके बाद if we talk by, तो we can talk about the census of Britishers, right? Census of Britishers between 1891 to 1931. तो 1901 में उन्होंने कहा कि जो भी कास्ट वो कास्ट सेंसस पे आए, तो उन्होंने सब कास्ट से उनकी लिस्ट मांगा. तो उन्होंने क्या किया कि न्यूमरस ऑफ कास्ट ने अपने आप को द्विजा का किया कि वी आर द द्विजाज. सो हमें क्षत्रिय घोषित करो, ब्राह्मण घोषित करो, वैश्य घोषित करो. लाइक जैसे कुर्मी wanted to be Kshatriya and तेली वैश्य, राइट? अब कुर्मी को क्षत्रिय और तेली को वैश्य होना, उन्होंने भेजा, साथ में अपने प्रमाण लगा दिए. तो उस समय जो बनना था वो काफी लोगों को स्टेटस मिल गया द्विजा का. एक ही तरीका हो गया. चौथा तरीका क्या होता है? गिवन बाय M.N. Srinivas, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. बट यहां पर वो किस मॉडल यूज करा है? मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम, द मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन. अब इसमें M.N. Srinivas क्या बोलता है कि संस्कृताइजेशन में क्या होता है? एक सिस्टम होता है कि व्हेन अ लोअर कास्ट और अ कास्ट which is inferior in the caste system to others, right? ये क्या करती है? It adopts the sanskara or cultural values or cultural life of upper caste by living its own traits of culture, right? And in later phase, it claims the higher status in caste system. This is called the process of sanskritization, right? If a caste, not an individual, sanskritization is not a model of individual or a unit, it is of a caste as a whole. So if a lower caste, right, by living its own trait, adopting trait or sanskara of upper caste, right, it starts, and then in later phase it claims the status of that higher caste. The system of this process is called as sanskritization. Sanskritization is a cultural phenomena, not a structural phenomena. ध्यान रखना, यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में शूद्र ऊपर नहीं जा रहा, ब्राह्मण नीचे नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर सेम है. चेंज क्या हो रहा है? संस्कारा. कैसे? कि हमने कहा है कि लोअर कास्ट लोअर क्यों है? वाई ए लोअर कास्ट इज लोअर? संस्कारा. क्या वर्ड लिया? संस्कारा. मद्यपान करती है, मतलब लीकर पीती है, नॉनवेज खाती है, विडो रेमेरेज को मानती है, वुमन के लिए वो सिस्टम नहीं है, अलग तरह से जीती है. यही प्रॉब्लम है ना, इसीलिए वो कौन सी कास्ट है? लोअर कास्ट. इन्होंने कहा ठीक है हम अपने छोड़ देते हैं.
अब हम क्या करेंगे? बैन ऑन लीकर, पहली बात हम करेंगे। दूसरा, अडॉप्टिंग वेजिटेरियन फूड। तीसरी बात, रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन इन टर्म्स ऑफ प्यूबर्टी, इन टर्म्स ऑफ विडो, हम करेंगे। राइट? सो द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, इसके थ्रू क्या होते हैं? अ लोअर कास्ट, द स्टेटस ऑफ ए कास्ट, स्टेटस ऑफ ए कास्ट कन्वर्ट्स फ्रॉम इंफीरियर टू सुपीरियर, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू superordinate. This process from sub to sup, inferior to superior, is called as the process of Sanskritization. Just to adopting Sanskritic elements of upper caste, they change their status. So it is called as Sanskritization. Clear? बस उन्होंने अपर क्लास की कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, तो ये कल्चरल फिनोमिना हुआ ना, इसीलिए इसको कहा जाता है संस्कृताइजेशन। ब्राह्मण क्षत्रिय, पहले उसने क्या कहा था? एट फर्स्ट फॉर रोल मॉडल फॉर संस्कृताइजेशन फॉर श्रीनिवास वॉज ब्राह्मण्स। तो उसने कहा था कि वो सारे लोग जो ब्राह्मण जैसे संस्कार ले रहे हैं, जैसे लिकर नहीं पिएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, वुमेन के लिए रेस्ट्रिक्शंस होंगे, प्यूबर्टी, पीरियड्स, जो भी उनके साथ टैबूज बने हुए हैं वो सब टैबूज का पालन करेंगे। तो बिकम आगे जाके उन्होंने क्या किया अपने आप को, और साथ में इनके पास क्या था? दे ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, अच्छे पावर था, इकोनॉमिक पावर था, बट एक चीज नहीं थी, क्या नहीं थी? सोशल स्टेटस। दे वर इंफीरियर इन सोशल स्टेटस, बट दे वर गुड एट इकोनॉमी एंड पॉलिटी, बट नॉट गुड एट सोसाइटी। अब सोसाइटी में ऊपर होने के लिए क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स उनकी कल्चर अडॉप्ट कर लो, कर ली तो कर ली, तो ये कास्ट आगे जाके ये बन गई। एट फर्स्ट फॉर श्रीनिवास रोल मॉडल ब्राह्मण, बट लेटर इसने क्या कहा? कोई भी डोमिनेंट कास्ट रोल मॉडल हो सकती है, कोई भी। तो इसने शुरू में कहा था अनटचेबल्स जो है वो कभी भी संस्कृताइजेशन में अपर कास्ट नहीं बन सकते। राइट? उसके लिए आपको कास्ट सिस्टम के अंदर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप कितना भी कुछ कर लो आप नहीं बन सकते। वो भी चेंज हो गया। राइट? जैसे मैंने कहा अब 91-31 के कुर्मी जो है, या तेली जो है, या मराठा जो है, बन गए ना। संस्कृत कैन बी एवरीवेयर, बट मेनली उसने यही कहा था कि कास्ट सिस्टम में लोअर कास्ट, नॉट अनटचेबल्स, लोअर कास्ट कैन क्लेम दी अपर कास्ट, नॉट अनटचेबल्स। संस्कृताइजेशन लोअर कास्ट में होगा, अनटचेबल्स में नहीं होगा। ये संस्कृताइजेशन सिस्टम है। अदर वेज ऑफ मोबिलाइजेशन हो सकते हैं, बट संस्कृताइजेशन किन किन में होगा? जो कास्ट सिस्टम की पेरिफेरी में आते हैं, न कि उससे बाहर है। राइट? नहीं, कास्ट का कहां हो गया? अनटचेबल तो बाहर हो गए ना, अस्पृश्य जातियां जो कास्ट से बाहर है, बाकी तो स्पृश्य है, वो तो अस्पृश्य है, वो तुम्हारे सिस्टम में भी नहीं आएगी। जो वर्णा से बाहर, तो कास्ट से तो बाहर हो ही गई। राइट? तो वो वहीं रह गए। शूद्रा तक तुम्हारा संस्कृताइजेशन संभव था, उसके नीचे नहीं था। ये था इसका मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन। तो इसने इस मॉडल पे तीन चीज पे बेटर ध्यान दिया। एक, पहला ये क्या बोलता है? पहली बात कहता है इट वॉज अ सिस्टम ऑफ मोबिलिटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तरीका क्या, मेथड क्या है? अडॉप्टिंग कल्चर ऑफ अपर कास्ट, उसका लो। तीसरा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अच्छी कंट्रोल होना चाहिए आपके पास। चौथी, यूनिट ऑफ संस्कृताइजेशन विल बी ए कास्ट नॉट इंडिविजुअल। राइट? फर्स्ट रोल मॉडल ब्राह्मण, बट लेटर इट चेंज्ड। ये थे संस्कृताइजेशन की शर्तें जो एम एन श्रीनिवास लेकर आता है। राइट? और इसके साथ साथ एक पैरेलल थॉट चला था, दैट वाज मॉडर्नाइजेशन। राइट? जैसे सिंगर है, मदान है, योगेंद्र सिंह है, ये बात करते थे संस्कृताइजेशन नहीं, मॉडर्नाइजेशन। तो श्रीनिवास कहता था नो नो, मॉडर्नाइजेशन इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट। राइट? इट इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। राइट?
तो ये बात करता है। और इसने इसके साथ साथ क्या कहा था कि व्हेन संस्कृताइजेशन वाज हैपनिंग इन लोअर कास्ट, a new system happened in the upper caste in terms of westernization, right? Due to the longer culture contact with the western culture, right? People converted them into western style of life. इसके पीछे कैसे मॉडर्न एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, राइट, और लॉ एंड लेजिस्लेशन है, उनका थॉट प्रोसेस है, फूड स्टाइल है, हैबिट्स है, ये उन्होंने वेस्टर्नाइज कर लिया कि जब लोअर कास्ट को अपर कास्ट बनना था, अपर कास्ट को वेस्टर्न होना था। जस्ट मोबिलिटी इन ए कास्ट सिस्टम बट नॉट स्ट्रक्चरल कल्चरल फिनोमेना। संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या? नहीं, वो के वही है, बट कल्चर चेंज हो गया। तो दिस वाज द वेस्टर्नाइजेशन मॉडल, राइट। अब यही बात वो कह रहे हैं कि शुरू चल रहा है, जैसे मान लो वर्टिलैक बोलता है कि वैराग्य was also a part of caste mobility, जिसको संसार में नहीं रहना साधु हो गया, और साधुओं की कोई भी जात, हाँ, जात न पूछो, सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो गया, साधु तो साधु है। तो वो भी एक मोबिलिटी हो गई, एक नई कम्युनिटी पैदा हो गई। तो जो इस सिस्टम से आक्रांत हो जाता था, क्लांत हो जाता था, वो क्या बन जाता था? वैराग्य। सो वैराग्य वाज आल्सो अ काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी। होती है ना, देख लो। ये सब बता रहा है किसके थ्रू? थ्रू संस्कृताइजेशन, राइट। कास्ट मोबिलिटी किसके थ्रू? संस्कृताइजेशन। अब एक फाइनल आती है कास्ट मोबिलिटी थ्रू पॉलिटिक्स, जो अभी सबसे ज्यादा हुई है, जिसके एग्जांपल हमारे पास में क्या, जो हमने डिस्कस किया था। आंध्रा में कौन है? कम्माच, कर्नाटका में रेड्डीज, तमिलनाडु में नडार्स, केरला में नैयर्स, महाराष्ट्र में महार। इन 1956 with the inspiration of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, Mahar emerged as the most prominent group in polity of Maharashtra, right? तो ये मोबिलिटी का एक नया तरीका आया। क्या आया? ये नाडार महाजन संघ, नैयर एसोसिएशंस, दोज पीपल ने क्या बनाई? एसोसिएशंस बनाई, और क्या बन गए आगे जाके? डोमिनेंट कास्ट हो गए, शक्तिशाली हो गए, कास्ट मोबिलाइजेशन से बाहर आ गए। महार्स एडॉप्टेड बुद्धिज्म, हो गया ना, तो अपना एक नया कल्चर अडॉप्ट कर लिया। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है पाने का। दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ कास्ट मोबिलिटी एंड डायनेमिक्स। तो सबसे ज्यादा डायनेमिज्म अभी किस चीज का आ रहा है? अभी आ रहा है, अब डायनेमिज्म की बात करें तो अभी कास्ट मोबिलिटी किस फॉर्म में हो रहा है? संस्कृताइजेशन इज नॉट ए कंसेप्ट नाउ। नोबडी वांट्स टू बी ए ब्राह्मण। क्यों? अरे बेनिफिट्स लूज कर जाओगे। ब्राह्मण वांट्स टू बी ए शूद्र, रिजर्वेशन चाहिए ना, मैंने बात की थी तुमसे, राइट। नाउ कास्ट मोबिलिटी में संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट खत्म है। व्हाई सो? नोबडी वांट्स टू बी। अब मॉडल क्या चल रहा है? मॉडल चल रहा है पॉलिटिकलाइजेशन। कास्ट मोबिलिटी की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज कास्ट रेस्ट्रिक्शन से बाहर आ गई है। व्हाई? कास्ट इज नाउ, अब इसमें रेस्ट्रिक्शंस लाइक अनटचेबिलिटी नहीं है, हायरार्की नहीं है, और प्योरिटी इन पॉल्यूशन नहीं है, राइट। ये ब्राह्मण जाके वैश्य कह सकते हैं कि हम तुमसे ऊपर है? कह सकते हो क्या? क्षत्रिय कह सकते हैं हम जी ब्राह्मण से नीचे है? नहीं, नमस्कार करेंगे ब्राह्मण साहब कैसे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, पर हर ब्राह्मण को नहीं, सिर्फ उसको जो जजमानी पुरोहिताई का काम करता है। वो कोई भी हो सकता है। क्या हर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण है? नहीं। हां, आप ये देखिए, महंत मीना भी हो सकते हैं, महंत सेवक भी हो सकते हैं, महंत गुर्जर भी हो सकता है, महंत ब्राह्मण भी हो सकता है, राइट। कोई भी हो सकता है। पुजारी होने के लिए अब ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। अब वो संस्कृताइजेशन कंसेप्ट
अब डायनेमिक्स ऑफ मोबिलिटी में तुमको ये वर्ड लेके आना है कि इन द प्रेजेंट सिनारियो caste system itself does not provide any model of Sanskritization. Sanskritization is no more a concept of caste mobility in present Indian society. Nobody wants to be a Brahman or Kshatriya. Reservation ही नहीं मिलेगा तुमको. Second, politicalization. Third, reservation. इसने caste system को rigid कर दिया. rigid कर दिया है. राइट? कास्ट आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज हो गई है पॉलिटिक्स की वजह से. पहले वोट किस नाम पर? रिलीजन. दूसरा कास्ट. कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट सिस्टम, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन के आया है. तो सोशल मोबिलिटी का रिजिडिटी हुआ है. अब मोबिलिटी नहीं हो रहा है, डोमिनेंसी हो रहा है, मोबिलिटी नहीं हो रहा है. ये है हमारा कास्ट मोबिलिटी जो हम कल करेंगे. ठीक है, मतलब मंडे को. अब इस पर हमारा कास्ट सिस्टम एंड. अब हमारे पास टॉपिक दो जाएंगे, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स और ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम. ये 3 टॉपिक. इसके बाद विलेज. कल टेस्ट है और एंथ्रो का ही है वो तो अपनी जगह. एंथ्रो का तो है ही, हम एंथ्रो क्लास में बोल रहे हैं.